Now today we will talk about res judicata. Alright, so let us first read the opening para of section 11 of CPC. It says, no court shall try any suit or issue in which matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to such subsequent suit, in a court competent to try such subsequent suit, or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided. ठीक है, तो अब पहले इस डेफिनेशन में कुछ चीज़ें मार्क करिए. डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, नो कोर्ट शैल ट्राई, इसको भी मार्क करिए. फॉर्मर सूट को मार्क करिए. सेम पार्टीज को मार्क करिए. और बिटवीन द पार्टीज अंडर वूम दे और एनी ऑफ देम क्लेम लिटिगेटिंग जो लिखा है उसमें प्राइवीज लिख लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए उसे. ठीक है. फिर कोर्ट कॉम्पिटेंट को मार्क करिए. ये कीवर्ड्स हैं ये सारे. कोर्ट कॉम्पिटेंट को मार्क करिए. और फाइनली हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड को मार्क करिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्हीं के बेसिस पे यू कैन एस्टैब्लिश द प्ली ऑफ रेस जुडिकाटा. अब ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो रेस जुडिकाटा पे अब मैं बताऊंगा वो आपको ये पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे. बट अभी के लिए बड़ा सिंपल रखते हैं. अभी क्या कहते हैं, रेस जुडिकाटा इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स डॉक्ट्रिन, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेंगे. ठीक है, हम लोग ईजी से हार्ड पे जाएंगे. We will proceed from simple concepts to the complex concepts that reside within the doctrine of res judicata. And once you understand them, the doctrine becomes fairly very easy. Now, I just want to get out there and tell you that the doctrine of res judicata was mentioned in one of the leading cases of Duchess of Kingston case. It was reported in Smith leading cases 13th edition at page number 644. इसका citation available नहीं है, तो this is its only citation. तो वहाँ पे सर विलियम डी ग्रे made the following observation. और उन्होंने क्या observation दिया? He said that from the variety of cases relative to the judgments being given in evidence in civil suits, these two deductions seems to follow as generally true. First, that the judgment of the court of concurrent jurisdiction directly upon the point is as a plea, a bar, or as evidence conclusive between the same parties upon the same matter directly in question in another court. Secondly, that the judgment of the court of exclusive jurisdiction directly on the point is in the like manner conclusive upon the same matter between the same parties coming incidentally in question in another court for a different purpose. तो बेसिकली जो ऑब्जर्वेशन था वो सिंपल शब्दों में ये था कि जो कोर्ट्स ऑफ कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन में से अगर किसी एक ने उस मेन पॉइंट पे रेस जुडिकाटा के सारे प्रिंसिपल्स को सेटिस्फाई करते हुए अगर जजमेंट दे दिया, देन देयर इज अ बार टू ट्रायल ऑफ द सेम पॉइंट in another court for the prosecution of the same point in another court. So, as amongst the courts of concurrent jurisdiction, if you have raised an issue directly in question before one court, then you cannot subsequently raise the same issue in another court if the point has been decided by a court of competent jurisdiction and he has fully and finally heard you, and that the matter was directly and substantially in issue in the former suit as well, also in the subsequent suit. So basically एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया उस पॉइंट पे तो आप दोबारा उस पॉइंट पे डिसीजन नहीं ले सकते. ये सिंपली अभी समझिए. ठीक है, आगे चल के थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन अभी सिंपली ये समझिए कि रेस जुडिकाटा मोटा मोटा है क्या. ठीक है, तो मतलब एक बार आपने एक पॉइंट पे डिसीजन ले लिया, ऑब्टेन कर लिया कोर्ट से, तो सेम पॉइंट को आप री एजिटेट नहीं कर सकते आगे जाके. ठीक है, कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब है कि मान लीजिए एक ही मैटर पे मेरी भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उसको एंटरटेन करने का और आपकी भी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है उसको एंटरटेन करने का. तो हम में से किसी भी कोर्ट को प्लेंटिव मान लीजिए अप्रोच करता है और फिर वो इशू डिसाइड होता है आइदर वन वे और द अदर, देन ही कैन नॉट टर्न अराउंड एंड गो टू अनदर कोर्ट एंड री एजिटेट द सेम मैटर अगेन. ठीक है, सिंपल शब्दों में ऐसे समझिए.
फिर एक एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन की बात की गई है। अब मान लीजिए कुछ मैटर्स में सिर्फ मेरी ही कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है उन मैटर्स को एंटरटेन करने का। आई एंटरटेन दोज मैटर्स, आई डिसाइड अपॉन दोज मैटर्स। तो अब कोई और कोर्ट उस मैटर को एंटरटेन नहीं कर सकती, बिकॉज आई हैव गिवन द डिसीजन ऑन दैट पॉइंट एंड रेस जुडिकाटा अब अप्लाई करेगा। ठीक है, अब एक चीज जानिए, द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा जो है वो एक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट पे बेस है, और उसका बेसिक एसेंस ये है दैट इट रिक्वायर्स दैट ऑल लिटिगेशन मस्ट सूनर और लेटर कम टू एन एंड, कि लिटिगेशन एक दिन खत्म हो। The principle of res judicata is founded on the principle of justice, equity and good conscience, and requires that the party who has once succeeded on an issue should not be harassed by multiplicity of the proceedings involving the same issue. ठीक है? Now I have told you this line while basing my citation on the judgment of Lalchand versus Radhakrishnan. It was decided on 17 December 1976. अच्छा, इस केस में क्या हुआ था, सिंपली से जान लीजिए। इस केस में ये हुआ था कि एक क्वासाई ट्रिब्यूनल जिसके पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन था एक इश्यू को डिसाइड करने का, स्लम क्लियरेंस एक्ट से रिलेट करता था ये, तो उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ में जाने की ज़रूरत है कि जो रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्रिन है वो कैसे रिलेट कर रही थी इस जजमेंट में। इस जजमेंट में ये हो रहा था कि स्लम क्लियरेंस के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन था कुछ क्लेम्स को एंटरटेन करने का, उसने वो क्लेम्स एंटरटेन किए, उस पर जजमेंट दे दिया। फिर जो पार्टी विच वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ दैट क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल, इट सॉट टू री एजिटेट द सेम इशू इन द सिविल कोर्ट। ये मैटर इवेंचुअली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द प्रेजेंट केस द सूट इज बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि the issues involved in the two proceedings are identical and those issues arise as between the same parties, and the issue which are now sought to be raised has been decided finally by a competent quasi judicial tribunal. The principle of res judicata is conceived in larger public interest, which requires that all litigation must sooner or later come to an end. The principle is also founded on equity, justice and good conscience, which requires that a party which has once succeeded on an issue should not be permitted to be harassed by a multiplicity of the proceedings involving determination of the same issue. तो basically ये आपको जजमेंट ये बता रहा है कि the larger purpose on which the res judicata is based is that one party should not be harassed again and again on the same issue. अब आप ही सोचिए, अब एक मैटर है, मान लीजिए मेरे और आपके बीच में कोई डिस्प्यूट है, आई एम द प्लेंटिफ, यू आर द डिफेंडेंट। अब मैं एक बार सिविल सूट आपके खिलाफ फाइल करता हूं, मेरा सूट डिसमिस हो जाता है। आई अगेन फाइल अ सूट अगेंस्ट यू री एजिटेटिंग द सेम मैटर, सो यूड बी हरास्ड और नो? यूड बी हरास्ड अगेन एंड अगेन, हर बार समन्स में जाना पड़ेगा, यू हैव टू expend the cost of litigation, then you have to, suffer some kind of mental tension as well. So in order to avoid all those things, the doctrine of res judicata was there. और ये कोई मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है, रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन इज नॉट एट ऑल अ मॉडर्न कंसेप्ट, ये बहुत एंशियंट डॉक्ट्रिन है। इट एग्जिस्टेड इन हिंदू लॉ, इट एग्जिस्टेड इन मुस्लिम लॉ, इट एग्जिस्टेड इन रोमन लॉ। अब हमारा एंग्लो सैक्सन लॉ है तो वी नो द डॉक्ट्रिन इज रेस जुडिकाटा, पर हिंदू लॉ के टाइम में इट वाज कॉल्ड पूर्व न्याय। ठीक है, हिंदू लॉ में भी एग्जिस्ट करता था, उसका नाम था पूर्व न्याय। तो ये जो डॉक्ट्रिन है इन वन फॉर्म और द अदर एग्जिस्टेड थ्रू आउट द एंशिएंट सिविलाइज्ड लीगल सिस्टम्स, इट हैज ऑलवेज एग्जिस्टेड। अब मैं आपको बताता हूं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है वो किन मैक्सिम्स पे बेस्ड है। ठीक है, और मैक्सिम्स की स्पेलिंग को लेके टेंशन मत लीजिएगा, मैंने स्टडी नोट्स में लिख के दे दी है, यू कैन जस्ट फाइंड इट देयर। बस अभी समझने पे ध्यान दीजिए। जो पहली मैक्सिम है वो है नीमो डेबिट बिस वेक्सरी प्रो उना एडिडम कॉजा। इट मींस नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। एक ही पर्सन को दो बार परेशान नहीं करना चाहिए एक ही कॉज पे। ठीक है। सेकेंडली, इंटरेस्ट रिपब्लिके उडसिट फेनिस लिडियम। It is in the interest of the state that there should be an end to litigation. You can understand that. अगर
जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को सू ही करते रहेंगे, इट वुड कॉज अ ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन ऑन द स्टेट। क्यों? ज़्यादा कोर्ट्स अपॉइंट करने, ज़्यादा कोर्ट्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, ज़्यादा जजेस अपॉइंट करने पड़ेंगे, और द लार्जर पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स वुड बी फॉर इंस्टीट्यूटिंग सिविल सूट्स अगेंस्ट अनदर पर्सन, तो उसमें भी तो एक्सपेंडिचर होगा। सो इट इज कंसिडर्ड वेस्टफुल आफ्टर अ वाइल, एंड किसी भी स्टेट के इंटरेस्ट में यही बात होती है कि जो लिटिगेशंस हैं वो किसी ना किसी तरीके से खत्म हो। थर्ड इज रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटाटे ऑक्यूपिटा। ये पूरा नाम है रेस जुडिकाटा का, रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटाटे ऑक्यूपिटा, या एक्सेप्टर भी आप बोल सकते हैं। इट मीन्स अ जुडिशियल डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट। मतलब एक बार जज ने डिसीजन दे दिया, एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, देन इट इज डीम्ड टू बी करेक्ट, वो माना जाता है कि वो सही है। जब रोमन टाइम्स में एक प्लेंटिव फिर उस इश्यू को एजिटेट करने की कोशिश करता था जिस पे वो ऑलरेडी एक बार जजमेंट ऑब्टेन कर चुका है, तो डिफेंडेंट हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने जाके एक बात बोलता था, दैट इज एक्स कैप्शियो रेस जुडिकाटा। इट मेंट that one suit and one decision is enough for a single dispute। एक सूट और एक डिसीजन इज enough for a single dispute। ठीक है, दैट वाज द रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट। वो ऐसे प्ली लेता था रेस जुडिकाटा की। तो जो रेस जुडिकाटा आप जो टर्म देख रहे हैं ना, ये आधा देख रहे हैं, ये जिन 3 मैगजीम पे बेस्ड है ये मैंने आपको बता दी, और इसका जो नाम डिराइव होता है वो होता है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटाटे एक्सेप्टर से। और डिफेंडेंट जो प्ली लिया करता था रोमन टाइम्स में वो होती थी एक्स कैप्शियो रेस जुडिकाटा। एक सूट एंड वन डिसीजन इज एनफ फॉर अ सिंगल डिस्प्यूट। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ स्पेंसर बावर, ये थोड़ा एकेडमिकली थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैं स्पेंसर बावर को भी कोट किए दे रहा हूं, कि अ फाइनल judicial decision pronounced by a judicial tribunal having competent jurisdiction over the cause or matter in litigation and over the parties thereto puts the entire matter at rest। उनके हिसाब से ये रेस जुडिकाटा की डेफिनेशन थी। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रीलिम्स में आ सकता है, इट इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, तभी मैं आपके बस अवेयरनेस के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एकेडमिक डेफिनेशंस उतना हेल्प नहीं करती हैं। यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट, आपको बेयर एक्ट का ध्यान रखना है, नॉट दीज जूरिस्प्रूडेंशियल डेफिनेशंस। बेयर एक्ट के बाद यू कैन यूज मैक्सिम्स एंड केस लॉस कंसेप्ट। अब मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। अब जैसे आपने ये मैक्सिम देखी, निमो डेबिट ब्रिस एक्सरी प्रो उना एडम कॉजा, दैट नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। ये प्राइवेट जस्टिस को रिप्रेजेंट करती है बिकॉज इट इज अ पर्सन सेंट्रिक, while the other two maxim, interest republicae ut sit finis litium, that is in the interest of state that litigation should come to an end, and res judicata pro veritate occupitur, that a judicial decision must be deemed as correct, ये दोनों पब्लिक पॉलिसी या पब्लिक जस्टिस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, ये पर्सन सेंट्रिक नहीं है। The latter two maxims are not person centric, while the first maxim is a person centric। Now let us suppose कि आपको एक मैटर पे सू किया जा रहा है। ठीक है, लेट अस सपोज आई एम सूइंग यू फॉर अ पर्टिकुलर मैटर, और उसके बाद अ जजमेंट कम्स, लेट अस सपोज अगेंस्ट मी, सूट डिसमिस हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी मैक्सिम आपको प्राइवेटली रिड्रेसल दे रही है? विच इज द मैक्सिम दैट इज कमिंग टू योर हेल्प डायरेक्टली। डायरेक्टली आपकी कौन मदद कर रही है? कौन सी मैक्सिम इनमें से? निमो डेबिट ब्रिस एक्सरी वाली, कि नो मैन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, ये तो आपको पर्सनली अप्लाई करती है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रिपब्लिके ut sit finis litium res judicata pro veritate occupitur बोला जा रहा होता है, आपको उससे क्या मतलब है ना? आप सीधे कह रहे हो कि भाई प्राइवेटली तो मुझे ये मैक्सिम अफेक्ट कर रही है, बाकी की 2 मैक्सिम तो पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक जस्टिस के रेलम में जाती हैं। वो एक लार्जर कंसेप्ट का पार्ट है, जिसके हिसाब से कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है, इट हेल्प्स द स्टेट ऑल्सो, और जो फाइनल मैक्सिम है, इट इज अ प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द जजमेंट। ठीक है, इट इज अ प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द जजमेंट, इट इज अ प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द कोर्ट, कि जुडिशियल डिसीजन सही ही होता है, गलत नहीं होता। ये पब्लिक पॉलिसी और पब्लिक जस्टिस का पार्ट है।
But the first maxim, that no man should be vexed twice for the same cause, ये प्राइवेट जस्टिस का पार्ट है, ये आपको प्राइवेटली एड करता है, और ये तीनों मैक्सिम एक साथ काम करती हैं एंड दे प्रोवाइड एज अ फाउंडेशन टू द रेस जुडिकाटा. इसी तीनों मैक्सिम पे रेस जुडिकाटा बेस्ड है. ठीक है, रेस जुडिकाटा हैज मोर देन वन रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एंड दीज थ्री मैक्सिम्स आर द प्राइमरी फाउंडेशंस ऑफ रेस जुडिकाटा. अब एक बात और आपको बताता हूं कि मान लीजिए स्टैट्यूट में रेस जुडिकाटा का सेक्शन होता ही नहीं, सेक्शन 11 होता ही नहीं. लेट अस सपोज सेक्शन 11 एग्जिस्ट ही ना करता स्टैट्यूट बुक्स में. ठीक है, सीपीसी में ना एग्जिस्ट करता और कहीं पे भी आपको रेस जुडिकाटा नहीं मिलता. तो एक बात बताइए, क्या रेस जुडिकाटा तब इंडिया में एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लीगल पॉलिसी एग्जिस्ट करता है या ना करता? The answer is yes, it would have existed because section 11 is not exhaustive. ठीक है, it is the recognition of the existence of the principle of res judicata. It is not the base on which the res judicata exists. तो अगर मान लीजिए सेक्शन 11 ना भी एग्जिस्ट करता होता स्टैट्यूट बुक्स में, even then res judicata would have been the part and parcel of the law of the land as it is. ठीक है, और यही कारण है कि कई मैटर्स ऐसे होते हैं जहां पे रेस जुडिकाटा अप्लाई तो जरूर करता है, लेकिन जब आप उस मैटर को देखेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो सिविल प्रोसीजर कोड से तो गवर्न ही नहीं होता, तो कैसे रेस जुडिकाटा अप्लाई करता है? उसका आंसर है कि रेस जुडिकाटा के जितने भी पॉइंट सेक्शन 11 में लिखे हैं वो एग्जॉस्टिव नहीं है. रेस जुडिकाटा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, सेक्शन 11 ना भी होता तब भी वो एग्जिस्ट करता. इनफैक्ट लालचंद वर्सेस राधा किशन का जो केस है जो मैंने अभी आपको बताया, उसमें भी ये इशू था. उसमें ये था कि जो स्लम एक्ट है वो तो सीपीसी से गवर्न नहीं होती, तो सेक्शन 11 कैसे उस पर अप्लाई हो सकता है? उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. सुप्रीम कोर्ट सेज that the fact that section 11 of the CPC cannot apply on its terms since the earlier proceeding before the competent authority is not a suit is no answer to the extension of the principle underlying the section in the instant case. Section 11 is long since settled, is not exhaustive, and the principle which motivates the section can be extended to cases which do not fall strictly within the letter of law. In other words, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि even though strictly principles उस पर नहीं अप्लाई करते क्योंकि वो सूट नहीं है, क्वासी जुडिशियल ट्राइब्यूनल के पास जो प्रोसीडिंग होती है वो सूट नहीं कहलाती है, तो जब वो सूट नहीं है तो सेक्शन 11 ऑफ द सीपीसी अप्लाई नहीं करेगा उस पर. ये आर्ग्यूमेंट था. सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उसका आंसर किया कि सेक्शन 11 इज नॉट एग्जॉस्टिव. ठीक है, वो कोई सेल्फ कंटेंट कोड नहीं है. जो प्रिंसिपल उसके अंदर अंडरलाई करता है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, वो उन चीजों पे भी एक्सटेंड करेगा विच डू नॉट फॉल स्ट्रिक्टली विद इन द लेटर ऑफ इट्स लॉ. जो सीपीसी से गवर्न नहीं भी होता तभी रेस जुडिकाटा का एक्सटेंशन उस पे होगा. तभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन. ठीक है, और क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स भी है. ठीक है, अक्सर जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होती हैं दे आर ऑल्सो कॉम्प्लेक्स. नाउ लेट मी कोट कॉर्पस जुरिस सेकंडम. उसमें भी यही कहा गया है कि रेस जुडिकाटा इज अ रूल ऑफ यूनिवर्सल लॉ pervading every well-regulated system of jurisprudence and is put upon two grounds embodied in various maxims of common law. The one, public policy and necessity, which makes it the interest of the state that there should be an end to litigation, and the other, that hardship to an individual that he should not be vexed twice for the same cause. वैसे हैं तीन मैक्सिम, लेकिन कॉर्पस जुरिस सेकंडम में दो ग्राउंड्स बताए गए, बट दे आर एक्चुअली 3. ठीक है, आप उन तीन ग्राउंड्स का ध्यान रखेंगे, तीन मैक्सिम्स का ध्यान रखेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ द ऑब्जेक्ट एंड द फाउंडेशन ऑफ रेस जुडिकाटा. तो अब मैं कुछ इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ. ये इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, एज इट इज़ एग्जाम में आते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई देयर इज़ अ नीड टू टेल यू लाइक दिस, एंड द इलस्ट्रेशंस आर वेरी इजी. अब पहला इलस्ट्रेशन कंसिडर करिए. A sues B for damages for breach of contract.
सूट डिसमिस हो जाता है, द सूट इज डिसमिस्ड. A subsequent suit by A against B for damages for the breach of contract for the same contract bar होगा या नहीं होगा? The answer is yes, it would be barred. Why? Because A's right to the claim of damages from B for breach of contract has been decided in the previous suit. Hence it became res judicata, and hence B cannot therefore be tried in the subsequent suit. दूसरा ये ग्राउंड होगा कि बी कैन नॉट बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज, दैट इज द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मोर ओवर द पब्लिक पॉलिसी ऑल्सो रिक्वायर दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन, एंड फॉर दैट रीजन द प्रीवियस डिसीजन मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट, लेस्ट एवरी डिसीजन वुड बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज एरोनियस एंड देयर वुड बी नो फाइनैलिटी टू अ डिसीजन. ठीक है, देख रहे हैं ना वो कैसे मैक्सिम के यूज से एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया जा रहा है. दैट इज हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स. सेकेंड इलस्ट्रेशन कंसिडर करिए. A sues B for possession of certain properties on the basis of a sale deed in his favor. A sues B for possession of certain properties on the basis of sale deed in his favor. B impugns का मतलब होता है चैलेंज करता है such deeds को कि वो fictitious हैं, कि मतलब forged हैं. The plea is upheld and the suit is dismissed. A subsequent suit for some other properties on the basis of the same sale deed is barred, as the issue about fictitious nature of the sale deed was actually an issue in former suit directly and substantially. यही issue directly and substantially previous suit में था, और एक बार जब वो डिसाइड हो गया तो उसको रीएजिटेट नहीं किया जा सकता. अब ए जो है उस डीड के फेवर में चाहता था कि वो डीड एनफोर्स हो जाए. ही वांटेड पोजेशन ऑफ सर्टेन प्रॉपर्टीज. बी ने चैलेंज किया वो सारी डीड्स फॉर्स्ड हैं, फिक्टिशियस हैं. फिर एविडेंस के थ्रू वो एस्टैब्लिश हुआ. जब वो एस्टैब्लिश हुआ तो कोर्ट ने बी की प्ली को अपहेल्ड किया और ए का सूट डिसमिस कर दिया. अब क्योंकि जो डीड का जो इशू था दैट वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू, तो अब उसको दोबारा रीएजिटेट नहीं किया जा सकता. आई थिंक यहां तक बड़ा सिंपल है अंडरस्टैंड करना, इसलिए बहुत सिंपली इसको समझिए. अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को सुनिए. ए स्यूज बी सी एंड डी. एक सक्सेशन सूट चल रहा है, ठीक है. उसके लिए एन इंटरप्रिटेशन और द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ विल इज रिक्वायर्ड. अब द डिसीजन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ विल ऑन राइवल क्लेम्स ऑफ द डिफेंडेंट will operate as res judicata in any subsequent suit by any of the defendant against the rest. मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं. ये जो A है, मान A कुछ भूल जाइए, हम और आप लोग हैं, ठीक है. मैं हूं और आपके साथ 6-7 लोग और हैं. Now let us suppose we are the part of the same family. और उस फैमिली में let us suppose बंटवारा होना है विल के हिसाब से. मैं एक सिविल सूट दायर करता हूं डिस्ट्रिक्ट जज के सामने. आई फाइल अ सिविल सूट इन द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, एंड देयरइन आई क्लेम दैट आई एम एंटाइटल्ड टू 1/3 ऑफ द शेयर एंड द रेस्ट ऑफ द शेयर इज टू बी पार्टेड अमंग द डिफेंडेंट्स. मेरा हिस्सा ज्यादा है, इनका हिस्सा बाकी के 2/3 में डिवाइड होगा. अब आप लोग इस क्लेम को कंटेस्ट करते हैं. इसके लिए कोर्ट विल को देखता है. अब उस विल को जब वो कंस्ट्रू करता है, इंटरप्रेट करता है, और उसके बेसिस पे एक बार जजमेंट दे दिया उसने, ठीक है, तब अब आप में से मान लीजिए कोई अग्रीव्ड है. नाउ ही कैन नॉट फाइल अ सूट एंड देन री एजिटेट द सेम मैटर एंड से दैट द विल शुड बी कंस्ट्रक्टेड अगेन. ठीक है, मतलब विल शुड बी इंटरप्रेटेड अगेन. ये आप बात नहीं बोल सकते इन अ सब्सिक्वेंट सूट, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन ऑफ विल था ऑन द राइवल क्लेम्स, हमारे राइवल क्लेम्स के बीच में, दैट वाज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ प्रीवियस सूट. हेंस अनदर सूट ऑन द सेम पॉइंट वुड बी बार्ड. देखिए, रेस जुडिकाटा की मैक्सिम को सिर्फ आप प्लेंटिफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मत समझिएगा. इसमें आपको मेन सब्सटेंस देखना है, ठीक है. तो चाहे वो डिफेंडेंट के राइवल क्लेम्स हो या प्लेंटिफ के राइवल क्लेम्स हो, रेस जुडिकाटा की मैक्सिम में आपको रेस जुडिकाटा के एसेंशियल एलिमेंट्स देखना है.
and then accordingly come to a conclusion. ठीक है. Fourth point is that A files a petition in High Court under Article 226 of the Constitution for reinstatement in service and consequential benefits, contending that the order of dismissal passed against him is illegal. The petition is dismissed. A then thereafter cannot file a fresh petition in Supreme Court under Article 32 of the Constitution, nor can institute a suit in civil court, as such petition or suit would be barred by res judicata. अब ये जितने भी अभी तक मैंने आपको केस बता रहे हैं, इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, ये एक्चुअली केस लॉज हैं. ठीक है. अब उस केस का नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा क्योंकि ये काफ़ी एंशियंट इन ओरिजिन है. ये जो डिसमिसल इन सर्विस वाली जो बात है, ये अभी मैं बताऊंगा जब मैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा समझाऊंगा. ये एक लीडिंग केस है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ रेस जुडिकाटा समझाना चाह रहा हूँ. तो अभी सिर्फ इलस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझिए. वैसे जस्ट टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, ये जो इलस्ट्रेशन मैंने अभी आपको दिया, ये बेस्ड है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन पे. लेकिन ये मैं जब रेस जुडिकाटा समझाऊंगा तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इसको. ठीक है. अभी आप सिर्फ रेस जुडिकाटा सिंपली समझिए. देखिए, हम लोग सिंपल कंसेप्ट से कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पे जाएंगे. वी डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट, क्योंकि आप पहले फाउंडेशन क्लियर करिए तब यू मूव फॉरवर्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए. ए sues B for possession of certain properties alleging that it has come to his share on partition of a joint family property. ठीक है. और फिर B कंटेंशन लेता है कि पार्टीशन अभी तक हुआ नहीं है. B says कि पार्टीशन अभी तक हुआ नहीं है. कोर्ट देखता है ये प्ली एंड इट फाइंड्स कि B की प्ली एकदम सही है. अब ऐसी सिचुएशन में अब कोर्ट क्या करेगा? A का सूट डिसमिस करेगा. थोड़े टाइम बाद A फिर से एक सूट दायर करता है और कहता है कि A और B के बीच में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो पार्टीशन हो चुकी हैं और उसको एक जुडिशियल अप्रूवल चाहिए. तो क्या सब्सिक्वेंट सूट बार्ड होगा या नहीं? अब इसका आंसर ये है कि द सब्सिक्वेंट सूट वुड नॉट बी बार्ड, क्योंकि जो इशू है वो स्टैटिक नहीं है. भाई, पिछले सूट में अभी तक पार्टीशन हुआ नहीं था. इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पार्टीशन अब कभी नहीं होगा. अगर पार्टीशन फिर आगे चल के हो गया, देन द सब्सिक्वेंट सूट वुड नॉट बी बार्ड. अगर कोई भी सिचुएशन आगे चल के चेंज हो सकती है और चेंज हो जाती है, देन द सब्सिक्वेंट सूट वुड नॉट बी बार्ड. जैसा कि पार्टीशन के सेंस में बता रहा हूं. मान लीजिए हम और आप फैमिली मेंबर्स हैं और मैं पार्टीशन का सूट फाइल करता हूं आपके खिलाफ. आप प्ली लेते हो कि पार्टीशन अभी एक्चुअली हुआ नहीं हो. कोर्ट मान जाता है कि हाँ नहीं हुआ है, सूट डिसमिस हो जाता है मेरा. आगे चल के एक्चुअली में पार्टीशन होता है एंड आई फाइल अ सूट फॉर पार्टीशन, जुडिशियल रिकॉग्निशन के लिए कि एक ऑफिशियल डिक्री आ जाए उस पॉइंट पे. अब ऐसी सिचुएशन में क्या ये जो सब्सिक्वेंट सूट है क्या ये बार्ड है या नहीं? इट इज नॉट बार्ड, क्योंकि इवन दो मैं सेम प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, मैं सेम पार्टीज की बात कर रहा हूं, और यहां तक कि मैं सेम टाइटल के अंडर भी बात कर रहा हूं, बट जो मैटर इन इशू है वो अब चेंज हो चुका है. पहली सिचुएशन में पार्टीशन नहीं हुआ था प्रॉपर्टी का, इस सिचुएशन में पार्टीशन हो चुका है प्रॉपर्टी का. दैट इज व्हाई द मैटर दैट इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इज डिफरेंट इन नेचर. और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रेस जुडिकाटा जो है ना एक स्टैटिक सिचुएशन पे अप्लाई करता है. ठीक है. जैसे अभी हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स का मैटर देखा या कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मैटर देखा. अब इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ विल तो एक ही बार होगा ना, अब ये फ्यूचर में चेंज थोड़ी ना हो जाएगा. और वैसे ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जब मैटर हम लोग ने देखा तो वो भी फ्यूचर में चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस के लिए हमें एविडेंस लेना पड़ेगा. वी हैव टू इंटरप्रेट अ कॉन्ट्रैक्ट. इंटरप्रिटेशन के बाद इंटरप्रिटेशन तो सेम रहेगा ना, वो फ्यूचर में चेंज थोड़ी ना होगा. बट एज फार एज पार्टीशन इज कंसर्न, तो हो सकता है कि आज पार्टीशन ना हुआ हो और उस बेसिस पे सूट डिसमिस कर दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी पार्टीशन नहीं होगा. आगे पार्टीशन हो सकता है, और अगर होगा और उसके बेसिस पे अगर सूट दायर किया जाएगा, देन इट इज नॉट बार्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा. ये याद रखिएगा.
वैसे ही एक मान लीजिए एक हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड क्रुएलिटी का एक सूट दायर करता है और उसके बेसिस पे डाइवोर्स मांगता है वाइफ से, ठीक है, कोर्ट से डिक्री ऑफ डाइवोर्स के लिए प्रेयर मांगता है और कहता है कि वाइफ ने मेरे खिलाफ क्रुएलिटी कमिट की है, विच इज़ अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। कोर्ट जो होता है उस सिचुएशन में देखता है कि जो क्रुएलिटी जिस जिस ग्राउंड्स ऑफ क्रुएलिटी वो ले रहा है और जिस एविडेंस से वो क्रुएलिटी एस्टैब्लिश कर रहा है, इमेजिन एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, तो वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाया और डिसमिस कर देता है। उसके 6-7 महीने बाद जो वाइफ है वो उसको मेंटली टॉर्चर करती है, लेट अस सपोज। हस्बैंड फिर से मेंटल क्रुएलिटी का ग्राउंड लगाता है कोर्ट में। अब ऐसी सिचुएशन में ये जो सूट है, जो दूसरा सूट है, वो फिर मेंटल क्रुएलिटी के बेसिस पे डिवोर्स मांग रहे हैं, बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से सिचुएशन चेंज हुई है। अब भाई पिछली बार हो सकता है मेंटल क्रुएलिटी ना हुई हो इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, लेकिन हो सकता है अगली बार हुई हो और एस्टैब्लिश हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, रेस जुडिकाटा स्टैटिक सिचुएशन पे अप्लाई करेगा। एक बार मेंटल क्रुएलिटी नहीं हुई इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बार भी नहीं हुई होगी, क्योंकि अब सिचुएशंस बदल गई हैं, सब्सिक्वेंट सूट में सिचुएशंस बदल गई हैं, सेम नहीं है। दैट इज व्हाई द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई इन दिस सिचुएशन, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि अभी हमने पार्टीशन की बात की, तो पार्टीशन अगर अभी तक नहीं हुआ है और सूट डिसमिस उस बात पे हो चुका है, तो अगले सूट में अगर फिर ये ग्राउंड होता है कि भाई पार्टीशन हो चुका है, देन द कोर्ट इज बाउंड टू इंक्वायर इनटू इट। ट्रायल तब बार नहीं होगा, क्योंकि रेस जुडिकाटा जो है इस पे अभी स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं कर रहा है। हो सकता है आगे पार्टीशन हो गया हो। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देता हूं आपको। A, claiming himself to be the owner of the property, files a suit for eviction of tenant B and subtenant C, which is decreed ex parte by a court of small cause. C, जो subtenant था, files a suit in civil court on the basis of title. A pleads res judicata in light of the decree passed in the former suit. Now tell me, would the finding regarding the ownership of A would be res judicata or not? The answer is that the finding regarding ownership of A will not operate as res judicata because the title to the property was not directly and substantially in issue in the former suit. ये एक रीजन है। दूसरा रीजन क्या है? The court of small cause is not a competent court which can adjudicate on the question of the title of an immovable property. तो आपने सेक्शन 11 में देखा होगा कि कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर पिछला कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है उस इश्यू को एंटरटेन करने के लिए, देन इट वुड नॉट अमाउंट टू रेस जुडिकाटा, ठीक है। अब पहले सूट में ए ने अपने आप को ओनर बताया इन अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, और सूट जो फाइल किया वो एविक्शन के ग्राउंड पे किया, सूट एक्स पार्टे डिक्री हो गया। लेकिन अब जब सी सिविल कोर्ट में खुद कह रहा है कि मैं ओनर हूं और टाइटल के बेसिस पे सूट फाइल किया, तो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कैन नॉट एंटरटेन दैट सूट। तो यहां पे मैटर इज ऑल्सो डिफरेंट, मैटर इज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, जैसा कि फॉर्मर सूट में था। फॉर्मर सूट में जो इशू था वो टेनेंट्स के एविक्शंस को लेके था, वाइल इन द लैटर सूट द क्वेश्चन इज ऑफ टाइटल। और फिर यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का भी इशू आ जाता है। जो प्रीवियस कोर्ट था, इट इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ टाइटल। जब प्रीवियस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी नहीं था, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ टाइटल बीइंग डिसाइडेड। अब इसमें यह मत सोचिएगा कि पहला सूट तो सर एक्स पार्टे डिक्री हुआ था, तो क्या वो भी तो फिर रेस जुडिकाटा नहीं होगा क्योंकि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं हुआ। देखिए, एक्स पार्टे डिक्री इज एज इफेक्टिव एज अ बाय पार्टे डिक्री, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा, रेस जुडिकाटा तब भी अप्लाई करेगा इवन दो इट्स एन एक्स पार्टे डिक्री। द करेक्ट प्रोसीजर इज टू गेट एन एक्स पार्टे डिक्री सेट असाइड इफ यू आर अग्रीव्ड। ऐसा नहीं है कि एक्स पार्टे डिक्री पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलस्ट्रेशन मैंने दिया है कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज वाला, यहाँ पे कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज के पास जुरिडिक्शन भी नहीं था, और जो मैटर है इट इज नॉट डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन द फॉर्मर सूट, ठीक है। देन आई कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है। अ पार्टनरशिप फर्म
filed a suit against B to recover rupees 50,000 or 1 lakh, imagine any amount. But suit dismiss इस ground पे हो जाता है कि partnership firm is not registered. अब आप में से अगर किसी ने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ी हो तो उसका सेक्शन 69 कहता है कि अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अपना पार्टनरशिप फॉर्म देन यू कैन नॉट सू ऑन बिहाफ ऑफ द फॉर्म. ठीक है, और भी चीज़ें कहता है बट अभी फॉर आवर इलस्ट्रेशन ये रिलेवेंट है. तो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है देन हाउ डू यू गेट ओवर दैट डिफेक्ट? यू गेट द फॉर्म रजिस्टर्ड. ठीक है, अब आप इतने एक बार रजिस्टर करवा लिया देन यू कैन फाइल अ फ्रेश सूट. तो अब हम वापस इलस्ट्रेशन पे आते हैं कि जब एक बार ए ने अपने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे बी को सू किया टू रिकवर अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी और सूट इस ग्राउंड पे डिसमिस्ड हो गया कि इट वाज नॉट मेंटेनेबल क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है, और फिर आगे चल के फॉर्म रजिस्टर्ड हो जाता है, देन इन दैट सिचुएशन द फ्रेश सूट filed by A on the same cause of action is not at all barred. क्यों नहीं barred है? क्योंकि यहाँ पे matter is not heard and finally decided. अगर there is a dismissal for default and the matter is not heard and finally decided तो res judicata नहीं लगता है. ठीक है, यहाँ पे इस बात पे dismiss हुआ है कि registered नहीं है. Registration करा लिया, so the partnership firm or A who is suing on behalf of the partnership firm got over a technical defect that was the non-registration of the firm. अब registered हो गया, it has filed कि उसका firm registered है. Now the fresh suit can be entertained. और इसका बेस रीजन ये है कि यहाँ पे इस इलस्ट्रेशन में रेस जुडिकाटा क्यों नहीं लग रहा है? इस इलस्ट्रेशन में रेस जुडिकाटा इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज द मैटर हैज नॉट बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट. सेक्शन 11 के फर्स्ट पैरा के लास्ट लाइन पे आइए, क्या कहता है? द मैटर शुड बी हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय सच कोर्ट. अगर मैटर हियर नहीं हुआ है और फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन, देखिए फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो यहां पे डिसमिसल किस बात के लिए था? इसलिए था कि द पार्टनरशिप फर्म हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड. So hence you cannot say that the matter has been heard or finally decided by such court and hence the res judicata would not apply. ठीक है, देखिए सारे ingredients होने चाहिए. मैं भी आपको बताता हूँ कि क्या क्या important है. देखिए, in order to decide the question कि whether the subsequent proceeding is barred by res judicata or not, it is necessary to examine the question with reference to first the forum or competence of the court, secondly parties and their representatives, thirdly the matter in issue, fourthly matter which ought to have been made a ground or defense or attack in the former suit, that is the constructive res judicata, and fifth the final decision कि final decision क्या था. And in order that a defense or res judicata may succeed, it is necessary to show that not only the cause of action was the same but also that the plaintiff had an opportunity of getting the relief which he is now seeking in the former proceeding. The test whether the claim in the subsequent suit or proceeding is in fact founded upon the same cause of action which was the foundation of the former suit or proceedings. In other words, थोड़ा simple करके बता देता हूँ कि along with the 5 matters that I just told you, the forum or competence of the court, parties and their representative, matter in issue, matters which ought to have been made a ground of defense or attack in the former suit, the final decision. Along with that, there has to be seen that whether the cause of action is the same or not, and whether the plaintiff had an opportunity of getting relief in the former proceeding, which he is now seeking in the subsequent proceeding. ठीक है, और ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ? देखिए, पहली बात तो सेक्शन से ही ये बातें क्लियर हो जाती हैं जब आप सेक्शन को डिटेल में पढ़ते हैं. बट दीज प्रिंसिपल्स और दीज ग्राउंड्स फॉर कंसिडरेशन हैज बीन एनंसिएटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट in the case of Jaswant Singh versus Custodian. In fact, this is one of the best judgments that you can refer to when you have to summarize that what are the essential ingredients and what is the essential test if you want to determine that whether the res judicata applies on the suit or not. So coming back to the issue of partnership, वहाँ पे firm registered नहीं था, then it could not be said that the matter was finally heard or there was a final decision.
वहां पे तो टेक्निकल पॉइंट पे कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया था, तो वहां पे रेस जुडिकाटा नहीं लगता, ठीक है, वहां पे रेस जुडिकाटा नहीं लगा क्योंकि फाइनल डिसीजन वाज नॉट हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड. It was the suit was rejected at the threshold because the partnership firm was incompetent to lodge a suit because of the bar under section 69 of the Indian Partnership Act, जो कि कहता है कि आपने अगर रजिस्टर नहीं किया then you cannot sue on the behalf of the firm. ठीक है, तो once that technical defect was got over by the means of registration, the defect no longer lies and it is permissible for A to lodge the same suit again for the same cause of action and same relief. ठीक है, merely because of just one reason that the matter was not heard and finally decided. ये सारी कंडीशन जो है ना देखी जाती हैं. आप ऐसा मत समझ लीजिएगा इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई then it is essential. No, all of these things are to be taken. देखिए पता है क्या, सीपीसी को लोग कॉम्प्लेक्स क्यों समझते हैं? सीपीसी और इन सारे कंसेप्ट्स को कॉम्प्लेक्स इसलिए समझते हैं बिकॉज दे एज्यूम कि अगर इनमें से एक चीज भी हो जाए या दो तीन चीजें हो जाए और एक पॉइंट रह जाए तब भी काम चल जाएगा. ऐसा नहीं होता. जो प्रिंसिपल्स हैं वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए तभी एक चीज प्रूव होगी. अगर उनमें से एक भी रह गया तब रेस जुडिकाटा वुडंट अप्लाई. ठीक है, और इस बात की अगर आप अवेयरनेस रखते हैं तो रेस जुडिकाटा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. कंफ्यूजन तभी आती है व्हेन अ पर्सन प्रिज्यूम्स कि 5 में से 4 मैटर अगर सेटिस्फाई हो गए देन व्हाई कांट रेस जुडिकाटा अप्लाई, क्योंकि 5 में से 4 हुए हैं ना, 5वां नहीं हुआ. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट रेस जुडिकाटा में जब सारे आप कंसेप्ट्स जान लेते हैं देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो सूट है या जो सब्सिक्वेंट मैटर है आपको उसको रेस जुडिकाटा के सारे प्रिंसिपल्स के कंटेक्स्ट में देखना है. एक बार सारे प्रिंसिपल्स के कंटेक्स्ट में समझेंगे तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, चाहे वो प्रैक्टिस में हो, चाहे वो डीजेएस में हो, चाहे आप कहीं भी लिख रहे हो. ठीक है, या आप किसी को समझा रहे हो. ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस जुडिकाटा और ऑल द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रेस जुडिकाटा फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी मस्ट एग्जिस्ट before it can be said that the subsequent suit is barred by res judicata. If all the principles do not exist, then, or if all the ingredients of res judicata are not satisfied, then in that situation it cannot be said that the subsequent suit would be barred by res judicata. ठीक है? Now let us have a look at the next illustration. A files a petition in High Court under Article 226 for the reinstatement in service and consequential benefits, contending that the order of dismissal passed against him is illegal. ठीक है? The petition is dismissed on the ground that the disputed questions of fact are involved in the petition and the petitioner has alternative remedy available in the civil court, and hence the High Court dismisses the suit. Then the petitioner files a suit in the competent civil court after looking at the judgment of the High Court. Now, is the subsequent suit in the civil court barred? The answer is it is not barred by res judicata. Why is it not barred by res judicata? Because the ground of dismissal which the High Court took is not on merits. वो merits पे decision नहीं दिया है High Court ने. हाई कोर्ट ने बोला है कि यू हैव ऑल्टरनेटिव रेमेडीज अवेलेबल, तो आप हमारे पास मत आइए, यू हैव सिविल कोर्ट, गो टू द सिविल कोर्ट. दैट इज व्हाई द हाई कोर्ट dismissed the suit. And since the high court dismissed the suit on the technical ground, it cannot be said that the matter was heard and finally decided. Hence, the subsequent suit in the competent civil court is maintainable and not barred by res judicata. ठीक है, अब देखिए अभी तक जितने भी मैंने इलस्ट्रेशन दिए हैं ये सारे जो फर्स्ट पैरा है सेक्शन 11 का उसी पे बेस्ड है. जो मेन सेक्शन है, एक्सप्लेनेशंस पे नहीं, जो मेन सेक्शन है उसी पे बेस्ड है. आप पहले मेन सेक्शन समझिए, देन वी विल गो मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन और बाकी के कंसेप्ट समझेंगे. ठीक है, यू नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, इन फैक्ट राइट इट डाउन समवेयर दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा वुड नॉट ओनली अप्लाई टू सिविल सूट्स. वो सिविल सूट्स पे तो अप्लाई करेगी ही, वो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करेगी, वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करेगी,
वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पे भी अप्लाई करेगी, वो रिट पिटिशंस पे भी अप्लाई करेगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पे भी अप्लाई करेगी, वो इंटरिम ऑर्डर्स पे भी अप्लाई करेगी, और वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करेगी. ठीक है. सो द एम्बिट ऑफ रेस जुडिकाटा इज वेरी वेरी वाइड. प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा की बात कर रहा हूँ, इट इज वेरी वेरी वाइड, तो उसको ध्यान में रखिएगा. अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा शायद ना अप्लाई करे, पर रेस जुडिकाटा जरूर अप्लाई करेगा. कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ रेस जुडिकाटा से कंसर्न रहिए. ठीक है. अब एक केस है शियो नंदन सिंह वर्सेस श्रीमती दरियाव कुंवर, डिसाइडेड ऑन 14 जनवरी 1966. अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे सेक्शन 11 की एप्लीकेबिलिटी के लिए. पहला, उन्होंने पहले सेक्शन को मेंशन किया और फिर बोला कि जब हम सेक्शन 11 को प्लेन स्पिरिट में पढ़ते हैं तो फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर इट्स एप्लीकेबिलिटी. First, the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit or issue must be the same matter which was directly and substantially in issue in the former suit. मतलब former suit और subsequent suit में जो matter है that should be the same, and it should be directly and substantially in issue. Secondly, the former suit must have been a suit between the same parties or their representatives, जिसको सेक्शन बोलता है पार्टीज अंडर वूम दे और एनी ऑफ देम क्लेम. थर्ड, पार्टीज मस्ट हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर सूट. टाइटल भी सेम होना चाहिए, सेम कैपेसिटी में सू करना चाहिए. ठीक है. तो सेम टाइटल का ये मतलब है कि ऑन वन, मान लीजिए एक इलस्ट्रेशन देता हूं समझाने के लिए, कि इन वन सूट यू आर सुइंग इन द कैपेसिटी ऑफ द टेनेंट. ठीक है. और दूसरे सूट में इन द सब्सिक्वेंट सूट यू आर सुइंग इन द कैपेसिटी ऑफ द ओनर. तो यहां पे टाइटल सेम नहीं है, टाइटल आर डिफरेंट. ठीक है. सो इफ द टाइटल इज डिफरेंट देन द रेस जुडिकाटा वुड नॉट अप्लाई. तो टाइटल सेम होने चाहिए. ठीक है. पार्टीज मस्ट लिटिगेट अंडर द सेम टाइटल इन द फॉर्मर एंड द सब्सिक्वेंट सूट. फोर्थ, कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट or the suit in which such issue is subsequently raised. इसी को हम लोग कॉम्पिटेंसी का ग्राउंड कहते हैं, कि जो कोर्ट है जिसने पहला सूट डिसाइड किया, इट शुड बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट एज वेल. कॉम्पिटेंसी उसके पास होनी चाहिए. अगर कॉम्पिटेंसी नहीं है मैटर को ट्राई करने की तो रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा ही नहीं. अब कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज अगर मान लीजिए ओनरशिप के टाइटल को डिसाइड करने लगे, जो वो डिसाइड नहीं कर सकता, जो उसकी जुरिसडिक्शन में नहीं आता, तो रेस जुडिकाटा नहीं अप्लाई करेगा. ठीक है. इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आपके पास जुरिसडिक्शन नहीं, यू कांट डू दैट थिंग. जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी टाइटल नहीं डिसाइड कर सकता किसी पार्टी का, या सिविल सूट नहीं डिसाइड करता है. अब वो अलग बात है, व्हेन आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही सिविल जज बनता है और सिविल जज की कैपेसिटी में वर्क करता है, अगर हाई कोर्ट ने वो पोर्टफोलियो ग्रांट किया हो उसे. अगर नहीं किया और उसके वर्क में नहीं आता है, एंड ही इज सपोज्ड टू फंक्शन ओनली एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड ही इज डिसाइडिंग अ सिविल केस इन कैपेसिटी ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, तो वो कोरम नॉन जुडिस माना जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. तो उस पर रेस जुडिकाटा तो अप्लाई करने का सवाल ही नहीं उठता. तो कॉम्पिटेंसी मैटर्स अ लॉट. ठीक है. फिफ्थ इज and lastly that the matter directly and substantially in issue in the subsequent suit must have been heard and finally decided in the by the court in the first suit. मतलब सुनना चाहिए पूरा और फाइनल डिसीजन उस पर आना चाहिए. ठीक है. फाइनल डिसीजन, तभी जाके रेस जुडिकाटा अप्लाई करेगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है. तो ये केस जो है शिवनंदन सिंह वर्सेस दरियाव कुंवर, इसको जरूर मेंशन करिएगा अपने एग्जाम्स में. लोकस क्लासिकस है ये, दैट इज व्हाई आई एम मेंशनिंग इट, एंड इट इज अ वेरी गुड जजमेंट. ठीक है. जसवंत सिंह वर्सेस कस्टोडियन अकॉर्डिंग टू मी इज बेटर, लेकिन शिवनंदन सिंह वर्सेस दरियाव कुंवर वुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एवरी एग्जामिनर. ठीक है. सो मेंशन दिस फर्स्ट बिफोर मेंशनिंग जसवंत सिंह. दिल्ली में अपियर कर रहे हैं प्रैक्टिस में, तो जसवंत सिंह आउट करिए डायरेक्टली. एक चीज याद रखिएगा कि द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एग्जॉस्टिव नहीं है, बट इट इज कंसिडर्ड द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. ठीक है. ये पॉइंट दरियाव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में हुआ था, और दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है. वो
रिट प्रोसीडिंग्स पे रेस जुडिकाटा कैसे और कितना अप्लाई करेगा उस पर अभी हम आएंगे, डिटेल में आएंगे। पहले एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस, रेस जुडिकाटा, लिस पेंडिस और बाकी चीज़ों में अंतर क्या है, ठीक है। थोड़ा डिफरेंसेस एकेडमिक वाला पॉइंट पूरा करा लें, फिर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आराम से डील करेंगे। पहले हम लोग आते हैं रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस में क्या अंतर है। देखिए रेस जुडिकाटा जो है वो अप्लाई करता है व्हेन द मैटर हैज बीन एडजुडिकेटेड अपॉन, while res sub judice applies on a pending trial। res judicata में ऑलरेडी एक डिसीजन होता है जो एडजुडिकेट हो चुका है, पर res sub judice जो अप्लाई करता है वो पेंडिंग ट्रायल पे अप्लाई करता है। सेकेंडली res judicata bars the trial of the suit or an issue which has been decided in the former suit, while res sub judice bars the trial of the suit which is pending a decision in previous suit। ठीक है, these are the difference that you have to write। नेक्स्ट वी कम टू रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में जो आते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको एविडेंस की क्लास में भी बता चुका हूँ कि रेस जुडिकाटा इज ऑफन ट्रीटेड एज अ ब्रांच ऑफ एस्टॉपल, है ना। रेस जुडिकाटा को बोला जाता है एस्टॉपल बाय वर्डिक्ट या एस्टॉपल बाय जजमेंट, ठीक है, या एस्टॉपल बाय रिकॉर्ड। ये लाइन याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है which of the following is known as the estoppel by record। आंसर ध्यान रखिएगा, that is res judicata। और जो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी होता है, इट इज नथिंग एल्स बट अ रूल ऑफ एस्टॉपल। एस्टॉपल से ही निकलते हैं, काफी कुछ सिमिलैरिटीज है लेकिन डिफरेंसेस भी बहुत हैं। पहला डिफरेंस, रेस जुडिकाटा रिजल्ट्स फ्रॉम डिसीजन ऑफ द कोर्ट while the estoppel results from the act of the parties। ये पहला डिफरेंस है। सेकेंडली रूल ऑफ रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन पब्लिक पॉलिसी, और जो अभी मैंने मैक्सिमम बताई जितनी भी सारी हैं, दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। एस्टॉपल ऑन द अदर हैंड प्रोसीड्स अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्विटी that he who by his conduct has induced another to alter his position to his disadvantage cannot turn around and take advantage of such alteration of the other's position। In other words, res judicata will bar the multiplicity of the suits while the estoppel prevents the multiplicity of the representation। It stops a party from saying one thing at one time and another thing at the another time। वो estoppel करता है, while res judicata bars the multiplicity of the suits or the re-agitation of the same issue against the same party again and again। Third is, res judicata outs the jurisdiction of the court to try a case and precludes an inquiry at the threshold, while estoppel is only a rule of evidence and shuts the mouth of the party। ठीक है, it is a very popular line that the estoppel shuts the mouth of the party, it is merely a rule of evidence। while res judicata क्या करता है, वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे अटैक करता है, वो उसके जुरिस्डिक्शन को ही चैलेंज करता है टू ट्राई अ पर्टिकुलर केस एंड प्रेक्लूड्स एन इंक्वायरी इन लेमाइन, मतलब एट द थ्रेशोल्ड। इनफैक्ट आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी कोई भी पार्टी, अगर आप जज हैं, कोर्ट में जाते हैं एंड यू आर अ जज, और कोई पार्टी चैलेंजेस द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू एंटरटेन अ पर्टिकुलर मैटर, तो वो वाले इशू सबसे पहले फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरली। In fact, have a look at order 14 rule 2, उसका rule 2 का सब rule 2 देखिएगा, जो कहता है कि where the issues of both fact and law and fact arise in the same suit and the court is of the opinion that any part thereof may be disposed of on an issue of law only, it may try the issues first if it relates to the jurisdiction of the court or to the bar of the suit created by the law for the time being in force। ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पज इट मे थिंग्स फिट पोस्टपोन द सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज अंटिल दोज इश्यूज हैज बीन डिसाइडेड। तो इश्यूज जो जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट को चैलेंज करते हैं वो पहले डिसाइड होते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए डिसाइड होते हैं क्योंकि पता चला कि कोर्ट ने पहले फैक्ट और जितने भी फैक्चुअल इशू थे सारा एविडेंस कलेक्ट कर लिया, सब चैलेंज कर लिया, और एंड में अगर इशू ऑफ जुरिस्डिक्शन या बार टू द सूट डिसाइड किया, पता चला कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं है वो डिसाइड करने का। ठीक है, तो जितनी भी मेहनत की जज ने वो पानी में चली गई। सो दिस इज व्हाई द इश्यू ऑफ लॉ एंड बार टू द सूट और विच चैलेंजेस द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये सबसे पहले डिसाइड होते हैं कोर्ट में। ठीक है, कभी भी याद रखिएगा कि अगर आप जजमेंट लिख रहे हैं और आप देखते हैं कि प्लीडिंग्स में योर जुरिस्डिक्शन हैज बीन चैलेंज्ड,
तो इशू ज्यूरिसडिक्शन का सबसे पहले बनाइएगा, या बार टू द सूट का सबसे पहले बनाइएगा, बाद में बाकी फैक्चुअल इश्यूज देखिएगा, ठीक है। वेल, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड एस्टॉपल, आगे बढ़ते हैं। सी, fourth point is that res judicata prohibits a man avering the same thing twice in successive litigations. दो litigations में एक ही चीज बोलने को prohibit करता है res judicata, while estoppel prevents him from saying one thing at one time and opposite at another. This is the fourth point of difference. Res judicata successive litigations पे apply करेगा and it prohibits a man avering same thing twice in the successive litigation, है ना, तभी तो सब्सिक्वेंट सूट होने की जरूरत होती है। While estoppel will prevent him from saying one thing at one time and its opposite at another. Fifth and the last point of difference is that the rule of res judicata presumes conclusively the truth of the decision in the former suit. आपको याद होगा वो लाइन, res judicata pro veritate occupata, इसका मतलब जुडिशियल डिसीजन इज डीम्ड टू बी करेक्ट। तो res judicata प्रिज्यूम करता है कि जो डिसीजन है जो फॉर्मर सूट में दिया गया है वो एकदम करेक्ट है, इट इज कंक्लूसिव ऑफ द ट्रूथ। While the rule of estoppel prevents a party from denying what he has once called the truth. वो पार्टी को प्रिक्लूड करता है, कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन नहीं बनाता। In other words, while res judicata binds both the parties to the litigation, estoppel binds only the party who made the previous statement or showed the previous conduct जिसके basis पे estoppel arise हुआ, ठीक है। तो these are the point of difference that you need to be keeping in mind. नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, दैट इज रेस जुडिकाटा एंड स्टेयर डिसाइसिस, ठीक है। स्टेयर डिसाइसिस की डॉक्ट्रिन आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में सुनी होगी, है ना, जिसको कहते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट्स भी। अब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है, इट बाइंड्स ऑल द कोर्ट, और हम उसे प्रेसिडेंट के बेसिस पे यूज़ करते हैं। वैसे हाई कोर्ट एक जजमेंट देता है, वी यूज़ इट एज अ प्रेसिडेंस। तो जो डॉक्ट्रिन है वो है स्टेयर डिसाइसिस, ठीक है। इसका मतलब to stand by the decided cases. Literally it means to stand by the decided cases or to uphold precedents. So what is the difference between two? The difference between the two is that first, that whereas the res judicata is based on the conclusiveness of the judgment and adjudication of the findings, the doctrine of stare decisis rests on legal principles alone. In fact, if I have to quote, Supreme कोर्ट के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 141 रिकॉग्नाइज करता है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस, दैट इज दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सेकंड डिफरेंस इज रेस जुडिकाटा बाइंड्स द पार्टीज एंड इट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, व्हाइल द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस विल ऑपरेट बिटवीन द स्ट्रेंजर्स ऑल्सो। वो वाइडर इन स्कोप है। स्टेयर डिसाइसिस या प्रेसिडेंट्स की जो डॉक्ट्रिन है वो स्ट्रेंजर्स पे भी अप्लाई करेगी, बट रेस जुडिकाटा से पार्टीज और उनके प्राइवीज पे अप्लाई करता है एंड नो वन एल्स। अब जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है, इट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, ठीक। व्हाइल द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस इज बेस्ड ऑन अ लीगल प्रिंसिपल, वो लीगल प्रिंसिपल पे एंटायरली बेस्ड है। वहां पे कोई लीगल प्रिंसिपल को डिटरमाइन किया जाता है। मैं जितने भी प्रिंसिपल्स आपको दिखाता हूं, जैसे दरियाव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात की, शिवानंदन सिंह वर्सेस दरियाव कुंवर की बात की, और लालचंद वर्सेस राधा कृष्ण की बात की, जसवंत सिंह वर्सेस कस्टोडियन की बात की, ये जो सारी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो लीगल प्रिंसिपल्स एनंसिएट किए हैं ना सुप्रीम कोर्ट ने इन केसेस पे, और वो अप्लाई करेंगे हर जगह। वाई इज दिस लॉ बाइंडिंग ऑल द कोर्ट्स? Because of the doctrine of stare decisis, not due to the doctrine of res judicata. तो जितने भी मैं आपको केस लॉ प्रोवाइड करता हूं, वो एक तरीके से वो क्यों अप्लाई कर रहे हैं? Because of the doctrine of stare decisis, that is the doctrine of precedents. Now, the next point of difference is, and the last point of difference, res judicata presupposes that the judicial finding upon the same facts involved in subsequent litigation between the same party is conclusive, while stare decisis will apply the same principle of law to all parties. अब इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझिए, आपको समझाता हूं। अब
जब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा है, अब सोचिए मैं आपको सू कर रहा हूँ किसी पॉइंट पे और वो इशू डिसाइड हो गया इन वन वे और दी अदर, डिसमिस हो गया या डिक्री ग्रांट हो गई, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए. नाउ यू नो आई कैन नॉट री एजिटेट द सेम इशू अगेन इन अ सब्सिक्वेंट लिटिगेशन, क्योंकि वो मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेट हो चुका है ना. बाकी चीज़ें प्री सपोज करके चलिएगा कि कोर्ट भी कॉम्पिटेंट था, सेम टाइटल में सू कर रहा था, मैटर वॉज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू, एसेट्रा एसेट्रा, वो सारी चीज़ प्री सपोज करके चलिएगा. लेकिन अब मान लीजिए यू आर अ लॉयर या यू आर अ जज, आप कोर्ट जाते हैं और आपको प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा अप्लाई करना है किसी गिवन केस पे. अब आप सोचते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा कैसे अप्लाई करेंगे, क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके. देन यू लुक एट अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि हाउ विल यू एडजुडिकेट पॉइंट नंबर 1 कि मैटर शुड बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. पहले ये देखेंगे, फिर देखेंगे फॉर्मर सूट सेम पार्टीज के बीच में था या नहीं, फिर सेम टाइटल के लिए सूट था या नहीं फॉर्मर सूट में, एसेट्रा एसेट्रा, ये ग्राउंड्स देखेंगे आप, जैसा कि शिवानंद सिंह वर्सेस दरियाव कुंवर में बताया है. एंड डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेज, अगर कोई और पॉइंट अप्लाई हो रहा है देन यू विल लुक केस लॉज ऑन दैट पॉइंट. तो जब आप प्रेसिडेंट्स को देखते हैं टू डिटरमाइन अ प्रेजेंट प्रॉब्लम जो आपके सामने है, टू डिटरमाइन अ प्रेजेंट कंट्रोवर्सी in context of legal principles alone, then in that situation you are using the doctrine of stare decisis. वो लॉ आपको बाइंड करता है ना, और मैं भी एज अ लॉयर वही जजमेंट्स कोट करता हूँ इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि कौन से लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे. आप भी एज अ स्टूडेंट वो वाले जजमेंट्स पढ़ते हैं, एकेडमिक पॉइंट्स टू डिटरमाइन द लीगल प्रिंसिपल्स कि कौन सा लॉ कैसे अप्लाई करता है. तो स्टेयर डिसाइसिस जो होती है वो हमेशा एक लीगल पॉइंट को सेटल करती है, वो लीगल प्रिंसिपल्स पे ही सेटल करती है, वो फैक्चुअल मैटर्स को नहीं सेटल करती. ठीक है. अब जैसे एक कोर्ट ये बताता है कि लॉ ऐसे अप्लाई करेगा, इन दिस मैटर द लॉ वुड अप्लाई लाइक दिस, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने एनंसिएट कर दिया. तो अगली बार जब भी कोई भी पार्टी आएगी जिन पे सेम लॉ अप्लाई हो रहा है तो वो वैसे ही अप्लाई करेगा जैसा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बताया है. ठीक है. दैट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस. लेकिन मैंने जब आपको सू किया और मैं जब सब्सिक्वेंटली उस मैटर को री एजिटेट करना चाहता हूं दूसरे कोर्ट में, देन इन दैट सिचुएशन क्या होगा, माय सूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, नॉट बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसाइसिस. ठीक है. अब नोट डाउन करिए रेस जुडिकाटा इन स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम्स, दैट इज ऑर्डर 2 रूल 2. इनमें क्या डिफरेंस है? ऑर्डर 2 रूल 2 पे हम लोग बाद में आएंगे, अभी बस डिफरेंस का ध्यान रखिए क्योंकि अभी साथ ही साथ कर रहे हैं रेस जुडिकाटा, तो ये भी डिफरेंस खत्म कर लेते हैं क्योंकि एकेडमिक नेचर का है, पर ऑर्डर 2 रूल 2 अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है. सो फर्स्ट नोट डाउन दैट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड ऑर्डर 2 रूल 2 इज दैट res judicata refers to the plaintiff's duty to bring forward all of his grounds of attack in support of his claim, while order 2 rule 2 requires a plaintiff to claim all the reliefs flowing from the same cause of action. वो हर उस रिलीफ को क्लेम करे जो सेम कॉज ऑफ एक्शन से निकल रही है. Secondly, while formal rule refers to both parties, res judicata दोनों पार्टीज पे अप्लाई करता है, be it plaintiff as well as defendant, order 2 rule 2 precludes a suit filed by plaintiff to claim more reliefs which he could have claimed in earlier suit. मतलब ऑर्डर 2 रूल 2 स्ट्रिक्टली सिर्फ प्लेंटिफ पे अप्लाई करता है, वो बार सिर्फ प्लेंटिफ पे अप्लाई करेगा, उस पे नहीं अप्लाई करेगा डिफेंडेंट पे. ठीक है. रेस जुडिकाटा तो डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों पे अप्लाई करता है, पर ऑर्डर 2 रूल 2 सिर्फ प्लेंटिफ पे अप्लाई करता है. अलाउ मी टू एक्सप्लेन बाय द वे ऑफ एन इलस्ट्रेशन. अब मान लीजिए मैं आपको सू कर रहा हूं. ठीक है. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इस एग्जाम्पल्स में हमको सू ही कर रहे हैं तब से, तो जस्ट एंटरटेन द थॉट कि आई एम सूइंग यू, लेट अस सपोज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और let us suppose in a given case I can claim 6 relief on the same cause of action. 6 reliefs मैं आपसे क्लेम कर सकता हूं. इमेजिन कोई भी डैमेजेस, कॉस्ट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए. ठीक है. 6 रिलीफ, नंबर यहां पे इंपॉर्टेंट है. 6 रिलीफ मैं क्लेम कर सकता हूं.
अब मैंने 6 में से सिर्फ एक रिलीफ क्लेम की है, ठीक है, मैंने 6 रिलीफ्स में से सिर्फ एक रिलीफ आपके खिलाफ क्लेम की है. अब लेट अस सपोज आई क्लेम दैट रिलीफ, मुझे मिल जाती है. अब मैं फिर से एक सूट दायर करता हूं प्योरली विद द इंटेंशन टू हैरास यू, और मैं जो हूं दूसरी रिलीफ अब क्लेम करता हूं, या बाकी की 4-5 रिलीफ ऐड कर देता हूं, और मैं कोर्ट से कहता हूं देखिए पिछले सूट में मैंने वो वाली रिलीफ क्लेम नहीं की थी, तो इस सूट में वो सारी रिलीफ मैं क्लेम कर रहा हूं. अब कोर्ट मुझसे कहेगा कि यू हैड एन अपॉर्चुनिटी to claim all of those reliefs in the previous suit. You didn't claim them. Hence, your suit is barred by Order 2, Rule 2. अब Order 2, Rule 2 क्या कहता है? वो कहता है every suit shall include whole of the claim which the plaintiff is entitled to make with respect to the cause of action, but a plaintiff may relinquish any portion of his claim in order to bring the suit within the jurisdiction of the court. Secondly, relinquishment of the part of the claim का effect क्या होगा? Where a plaintiff omits to sue in respect or intentionally relinquishes any portion of his claim, he shall not afterwards sue in respect of the portion so omitted or relinquished. Third is omission to sue for one of specific relief, one of several relief. Omission to sue for one of several reliefs. A person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of the reliefs. But if he omits, except with the leave of the court, बिना कोर्ट की परमिशन के, he omits to do that, to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. इसका मतलब है कि आपको कोर्ट से परमिशन लेके ही ओमिशन करना है. अगर बिना परमिशन के you omit to sue for those reliefs, then you cannot then again institute a suit to claim all the other reliefs which are available. एक ही सूट में सारे रिलीफ क्लेम करिए ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है. अब ऑर्डर 2 रूल 2 पे बाद में आएंगे. ये रेस जुडिकाटा के डिफरेंस के पॉइंट से मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, जस्ट फॉर द सेक दैट यू हैव एन आइडिया. नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड विड्रॉल ऑफ द सूट. तो देखिए विड्रॉल ऑफ द सूट जो होता है वो ऑर्डर 23 रूल 1 से गवर्न होता है, ठीक है. ऑर्डर 23 रूल 1 अलाउज द प्लेंटिफ टू विड्रॉ whole or any part of its claim if he so wants, ठीक है. और ऑर्डर 23 रूल 1 बताता है कि अगर बिना कोर्ट की परमिशन के यू विड्रॉ योर क्लेम, देन इन दैट सिचुएशन यू आर प्रिक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है. इफ विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट यू विड्रॉ योर क्लेम, देन यू आर not permitted to sue in respect of the same cause of action. That is what is enunciated and that is what is laid down by order 23 rule 1. While in the case of res judicata, the entire matter is heard and fully adjudicated by the court. You know this by now, that the entire matter is heard and finally decided. The matter is directly and substantially an issue and the court is competent to determine that, and then it gives a conclusive judgment on that point, ठीक है. ऑर्डर 23 रूल 1 में क्या होता है, वो विड्रॉ कर लेता है. वो डिफरेंस छोटा सा है, समझने में बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में आता है. दैट इज व्हाई आई एम डिस्कसिंग इट. वैसे तो सोचा जाए कि ये तो मतलब कॉमन सेंस वाली बातें हैं. अब कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो रेस जुडिकाटा से मिलती जुलती हैं. इन अदर वर्ड्स यू कैन से दे आर द एक्सटेंशन ऑफ रूल ऑफ रेस जुडिकाटा. जैसे कि रेस जुडिकाटा इन इशू एस्टॉपल, ठीक है. अब सेक्शन 300 के सबसेक्शन 1 ऑफ CRPC, where the concept of atrophois acquit and atrophois acquit is contained, atrophois convict and atrophois acquit is contained, that is an issue of an that is a illustration of an issue estoppel. कि एक बार एक इशू डिसाइड हो गया, अब उस पर रेस जुडिकाटा लग जाएगा. अभी क्रिमिनल ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ. सेक्शन 300 ऑफ द CRPC को सिंपल पॉइंट में ये समझिए कि एक बार एक चार्ज ट्राई हो गया और उस पर जजमेंट आ गया. अब चाहे जजमेंट एक्विटल का हो या कन्विक्शन का हो, उसी पॉइंट पे दोबारा ट्रायल बार्ड है, ठीक है. अब उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं छोटे मोटे, सेक्शन 300 में दिया हुआ है, लेकिन मोटा मोटा इट इज द सेम थिंग कि एक बार एक ट्रायल पे जजमेंट ऑफ कन्विक्शन या एक्विटल आ गया and it has not been set aside in an appeal or revisionary proceedings, then it will continue to stay in force and a subsequent trial on the same point is barred, ठीक है.
तो ये आपको काफ़ी कुछ रेस जुडिकाटा से मिलता जुलता लग रहा होगा, और इनफैक्ट है भी. इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ द ब्रांच ऑफ रेस जुडिकाटा ओनली. अब इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं. इनफैक्ट डिफरेंस भी इसमें एकेडमिक या हेयर स्प्लिटिंग लेवल का ही होता है कि आप इशू एस्टॉपल को क्रिमिनल लॉ के कंटेक्स्ट में जानते हैं जो सेक्शन 300 ऑफ द सीआरपीसी में कंटेन्ड है, और रेस जुडिकाटा को आप प्रॉपरली सिविल प्रोसीजर कोड के कंटेक्स्ट में जानते हैं. यही आप एक डिफरेंस बना सकते हैं, बट प्रॉपरली स्पीकिंग इन सब्सटेंस इट इज़ नथिंग बट द एक्सटेंशन ऑफ रेस जुडिकाटा इन क्रिमिनल केसेस. ठीक है, इसीलिए इसमें सिमिलैरिटी है, इसमें कोई डिफरेंस एज सच अगर सब्सटेंस पे जाएंगे तो नहीं है. टेक्निकलिटी में आप सब्सटेंस बना सकते हैं कि वो सीआरपीसी में कंटेन्ड है, ये सीपीसी में कंटेन्ड है, बट अगर आप सब्सटेंस में जाएं यू फाइंड इट एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूल ऑफ लॉ. सो इन दैट सिचुएशन इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ रेस जुडिकाटा इन क्रिमिनल केसेस. ठीक है, अब फाइनली आते हैं ऑन द इश्यू ऑफ रेस जुडिकाटा इन लिस पेंडिस. अब जो लिस पेंडिस है इट इज ट्रीटेड एज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ रेस जुडिकाटा. ये टीपीए में है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, सेक्शन 52 में. उसका छोटा सा एसेंस ये है कि एन एलियनरी पेंडेंटे लाइट मतलब पेंडिंग लिटिगेशन इज बाउंड बाय द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन. इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाता हूँ. इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म एलियनरी पेंडेंटे लाइट मीन्स, अगर मान लीजिए मेरी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और आप मुझे सू करते हैं इस बात पे कि यू वांट टू अक्वायर दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम मी. आप कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको बेच चुका हूँ, ये आप कोर्ट के सामने बोलते हैं. अब मैं सोचता हूँ कि अरे अगर ये मैटर चलेगा तो आप जीत जाओगे केस, आई नो यू विल विन. तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता हूँ कि पेंडिंग लिटिगेशन, जब लिटिगेशन पेंड कर रहा है कोर्ट के सामने, ट्रायल चल रहा है, मैं क्या करता हूँ वो प्रॉपर्टी बेच देता हूँ थर्ड पर्सन को. आई सेल दैट प्रॉपर्टी टू द थर्ड पर्सन जस्ट इन ऑर्डर टू डिफीट योर क्लेम. Now let us suppose if the court comes in your favor, कोर्ट कहता है कि नहीं you are entitled to that property, तो doctrine of lis pendis कहती है कि जो थर्ड पर्सन को मैंने प्रॉपर्टी बेची he will be bound by the suit. इसका मतलब है he will be bound by the outcome of this litigation. तो उसके पास जो ट्रांसफर गया वो उसके पास नहीं रहेगा. वो कोर्ट बोलेगा कि the property actually belongs to you and the third person would be bound by such outcome. तो ये जो थर्ड पर्सन हुआ वो कौन हुआ? वो एलियन ही हुआ. ठीक है, सो दैट पर्सन वुड बी बाउंड बाय द आउटकम ऑफ द लिटिगेशन बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज किसके थ्रू वो प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा है? ही इज क्लेमिंग थ्रू मी. मैंने वो प्रॉपर्टी उसको बेची है ना, तो लिटिगेशन का आउटकम जो भी होगा वो उसको भी बाइंड करेगा. ये कहती है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडिस. ठीक है, अब इसमें थोड़े से नुआंसेस हैं, मतलब नुआंसेस क्या कहें, कुछ एस्पेक्ट्स अवेयरनेस के हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में. मैं उसमें ज़्यादा नहीं जा रहा. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द सब्सटेंस कि मेन चीज़ समझिए फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. अब लिस पेंडिस और रेस जुडिकाटा में क्या अंतर है? देखिए बहुत सिंपली लिस पेंडिस और रेस जुडिकाटा में ये अंतर है कि जो लिस पेंडिस है वो एलियनी को बाइंड करती है पेंडिंग लिटिगेशन, while res judicata binds whom? The parties and the privies. res judicata मुझे, आपको और मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बाइंड करेगा. बाइंड तो वो उनको भी करेगा थर्ड पर्सन को कि वंस द टाइटल हैज बीन एडजुडिकेटेड. लेकिन लिस पेंडिस का जो एस्पेक्ट है डायरेक्ट, लिस पेंडिस पेंडिंग लिटिगेशन, अगर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है तो जब सूट का जो आउटकम आएगा वो थर्ड पर्सन को बाइंड करेगा, ये कहती है. ठीक है, while res judicata is a bit more expansive in scope. ठीक है, it is a bit more expansive in scope. तभी लिस पेंडिस को सिर्फ एक एस्पेक्ट कहा जाता है रेस जुडिकाटा का, not the entire thing. अब डिफरेंसेस तो हो गए. नाउ वी कम टू द पॉइंट कि आप रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन का कंस्ट्रक्शन या इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. देखिए रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन का हमेशा लिबरल कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, आप उसको लिबरली कंस्ट्रू करते हैं, उसको नैरोली कंस्ट्रू नहीं करते जैसे कि आप पेनल लॉ को करते हैं. पेनल प्रोविजंस आर कंस्ट्रूड नैरोली और स्ट्रिक्टली, व्हाइल प्रोविजंस लाइक दीज which are based on public policy and the need of giving finality to the judicial decisions are interpreted liberally. इसको liberally interpret किया जाता है. ये कहीं लिख लीजिएगा that
द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा इज टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली. इसको लिबरल इंटरप्रिटेशन दिया जाता है, इसको नैरो या स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन नहीं दिया जाता. और जब आप कभी भी इस सवाल को इनकाउंटर करें कि जो रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्रिन लगेगी किसी केस पे या नहीं, तो आपको केस का सब्सटेंस देखना होता है. ठीक है, उसका फॉर्म नहीं. यू डोंट हैव टू लुक एट द फॉर्म कि वो किस मैनर में है या किस फॉर्म में लगी. आपको उसका मेन सब्सटेंस, मेन एसेंस पे ध्यान देना होता है. ठीक है, दैट इज हाउ यू कंस्ट्रू इट प्रैक्टिकली. और उसको आप प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन ही देना होगा. अब जैसे आप किसी थियोरेटिकल स्टेट का आंसर दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे इतना ही मेंशन करने की जरूरत है दैट इट इज इंटरप्रेटेड नैरोली, सॉरी, इट इज इंटरप्रेटेड लिबरली बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन हाई पब्लिक पॉलिसी, वो 3 मैगजीन जो मैंने बताए उस पर, और इन द नीड ऑफ गिविंग फाइनलिटी टू द जुडिशियल डिसीजन. एंड फॉर दैट पर्पज द सब्जेक्ट and the substance of the matter is to be considered, not the form of it. ठीक है, इतना ही लिखने से आपका काम चल जाएगा. In fact, you will be getting very very high marks for it. But when you are appearing in practice or you are appearing in DJs, then for that purpose you have to make sure that you don't only write it, you believe it. आप इसको believe भी करिए. ठीक है, कि आप substance को देखेंगे, form को नहीं देखेंगे सिर्फ. You have to see at the basic essence of the matter. ठीक है, तो अभी के लिए रेस जुडिकाटा पे बस इतना ही रखता हूं. एंड टुमारो वी विल ड्वेल मोर ऑन द टॉपिक ऑफ रेस जुडिकाटा. टॉपिक ऑफ रेस जुडिकाटा पे हम लोग और इलेबोरेट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. इसको ध्यान से सुनिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछिएगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर रेस जुडिकाटा इज टू बी इंटरप्रेटेड लिबरली. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन दोज 3 मैक्सिम्स विच आर वेरी एसेंशियल फॉर द स्टेट. ठीक है, so that is it for today. I'll see you tomorrow.